Hello and welcome to the open forum of social discussions where contemporary issues will be emphasized and solutions will be discussed. Through these forums, we intend to bring together geographically dispersed social thoughts under one roof through explicit expressions. I heartily welcome you all to the celebration of womanhood today, but in a radically different way. Today, we have with us a consortium of like minded women who have carved a niche for themselves in the realm of women empowerment and have led the revolt from the front to mitigate the atrocities against women in this patriarchal society. Our panel comprises of Anni Amrita, who have had 17 years of experience in the field of media. She is presently serving as a bureau head cum assistant chief reporter at News 11 Bharat, Jamshedpur. She is an ardent supporter of women's rights and has proved time and again that women are not the lesser mortals. We also have with us Antara Bose, who has had a long stint as a senior reporter with the Telegraph. She happens to be the voice of the women from the underprivileged class and of those who cannot find a solution to their own problems. She has devoted most of her life in empowering rural women through her stories. I would also like to introduce you to Reema Dey, a senior correspondent from Prabhat Khabar's Jamshedpur chapter. She is a lady known for her justified audacity when it comes to raising her voice against any sort of injustice to women. Though she is a woman of few words, she has heartily accepted the idea of joining this conclave to represent the issues that we will discuss today. Next, we have Malavika Sharma, an advocate, a social entrepreneur, and an activist from Ranchi. Though she holds numerous prestigious and significant roles in empowering the underrepresented class of society, today she will particularly help us analyze and understand the gender imbalance structures that surround us and how we can reinforce changes for a better tomorrow. And I am Lumbini Sheel, a social thinker who will be steering forward today's discussion with our panelists. और हम इस डिस्कशन को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संचालित करेंगे. I welcome all the revered panelists to today's summit and extend a warm welcome to all the viewers. Let's start the session with Anni Amrita. Anni जी, क्या आप अपना माइक ऑन करेंगी? हाँ, ऑन कर. अन्नी जी कहते हैं अत्याचार घर से शुरू होता है. बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिन्होंने अपने आस पड़ोस अपने रिश्ते में आने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा कई प्रकार के उत्पीड़न सहे हैं. न जाने कितने अनकहे और अनसुने किस्से गुमनामी में दफन हो गए. उनको न्याय कैसे मिलेगा? कम उम्र में शोषण हमारे बच्चियों के मस्तिष्क पे क्या प्रभाव डालता है? अगर आप चाहे तो किसी विशेष केस पर व्याख्या करते हुए भी अपना पॉइंट रख सकती हैं. कृपया विस्तार से बताएं. हाय लुम्बिनी एंड ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा मौका दिया है लुम्बिनी ने. आज इस तरह से हम लोग बैठे हैं और हम लोग विमेन पे बात कर रहे हैं, महिलाओं पे बात कर रहे हैं. जो पहला क्वेश्चन लुम्बिनी आपने किया है कि अत्याचार घर से ही शुरू होता है, मैं अपनी बातों की शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले तो देवी कहना छोड़कर इंसान समझना शुरू किया जाए, तो आधी समस्याएं तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगी. क्योंकि हम देवी हैं तो हमसे गलतियां नहीं हो सकती है. क्योंकि हम देवी हैं तो हमसे इंसान बनने की अपेक्षा नहीं की जाती है. यहीं से गलत की शुरुआत हो जाती है, घर से ही शुरुआत होती है और ये धीरे धीरे गलियों चौराहों समाज तक जाती है. और घर से अत्याचार की शुरुआत कैसे होती है, ये किस तरह से मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं. हालांकि हम सब बहुत प्रिविलेज्ड हैं गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, कि हमें ऐसे घर नहीं मिले जहां हमें बहुत ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा हो. पर जाने अनजाने क्या क्या होता है. जैसे माँ है, खाना बनेगा तो बेटा को खाना वो मिलेगा जो अच्छा वाला पार्ट है, जो बच गया वो बेटी को मिलेगी. बेटी को पढ़ने में डिस्टरबेंस होगा, वो पढ़ नहीं पाएगी, उसको खाना भी बनाना है, पढ़ना भी है. बेटा सिर्फ पढ़ेगा. ये छोटी छोटी चीजें घर से शुरू होती हैं जो भेदभाव पैदा करती हैं. और ये अमूमन हर घर में हम लोग देखते हैं. हम अपने घर में ना भी देखे हो तो हम हर घर में ये देखते हैं. ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है, वैसे नहीं बोलना है. मैं आपको बताऊं, अनुशासन की जो बातें हैं ना, वो अलग अलग बनाई गई लड़के और लड़कियों के लिए. तो हमने घर से ही बीजारोपण कर दिया
कि अलग हैं और आप श्रेष्ठ हैं, पुरुष श्रेष्ठ है, स्त्री श्रेष्ठ नहीं है। जबकि अगर स्त्री कुछ नौकरी नहीं भी कर रही है, घर संभाल रही है, तो वो श्रेष्ठ है क्योंकि उसने आप सबको संभाला है। लेकिन हम इस चीज को अब वैल्यू नहीं करते हैं, अब उसकी उतनी महत्ता हम नहीं समझते। इस तरह का एक समाज हमने बना लिया है कि एरोप्लेन उड़ाने वाली महिला या नौकरी करने वाली महिला श्रेष्ठ है, घर संभालने वाली महिला श्रेष्ठ नहीं है। ये सब इन कारणों से भी जो है ना, भेदभाव की शुरुआत होती है। आप देखिए कि कोई जरूरी नहीं कि कोई किसी को मार ही रहा है या कोई हिंसा ही हो रही है लड़की के साथ घर में, लेकिन जब भेदभाव का बीजारोपण होता है तो ये जो है अवचेतन मन में बैठता चला जाता है। और अवचेतन मन में जब बैठता चला जाता है तो पुरुषों के प्रति एक विद्रोह की भावना भी जन्म लेती है। यानी वैसे घर जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की गई महिलाओं के साथ, ऐसा नहीं कि उनको मारा गया, लेकिन छोटे छोटे भेदभाव किए गए, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, अनुशासन, कब लौटना है कब नहीं लौटना है, इन सारी चीजों की जो पाबंदियां अलग तरह से लगाई गई, जो घर के लड़कों पे नहीं लगाई गई, तो उनके अंदर विद्रोह का जन्म होता है। और उनके जीवन में कोई भी आया पुरुष के रूप में तो वो उसका दुश्मन ही होता है अवचेतन मन में। ये नहीं कि आप सामने से कुछ कह रही हो, लेकिन अवचेतन मन में ये दुश्मनी जो है पैठ बनाती चली जाती है। यही एक दूसरे के प्रति जो है ना नफरत की दीवार खड़ी करती जा रही है। आखिर क्यों स्त्री और पुरुषों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है? इसका कारण यही सब भेदभाव है जो बचपन से डाले जाते हैं घर से, बाद में समाज की ओर आते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण अपनी माँ का देना चाहती हूँ कि मेरी माँ एक ऐसी महिला है जो स्त्री पुरुष दोनों पर पाबंदियां लगाती है। मतलब हमारे घर में ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग रूल है और मेरे पिता या मेरे भाई के लिए अलग रूल है। वो पिता और भाई भी उतने स्वतंत्र नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। वो पुरुष पर भी उतनी ही पाबंदी लगाती है कि समय पर घर आ जाना है, इतना बजे आ जाना है। तो ये पाबंदी शुरू से मेरे भाई को बहुत ज्यादा रही। तो मेरे भाई को ये शौक होता था कि बाकी माओं की तरह उसकी माँ भी उसको आजादी दे, जैसा कि बाकी उसके दोस्तों को मिलती थी। उस पे ज्यादा पाबंदी होती थी, मुझ पे कम पाबंदी होती थी, क्योंकि सबको पता था कि मैं अपने समय से घर आ जाऊंगी, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। उस पर बहुत पाबंदी होती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होना चाहिए कि लड़कों पर भी पाबंदी रहे तो उनको भी लगे कि नहीं, ये अनुशासन से जुड़ा मसला है कि आपको समय पर घर आ जाना है। अब आप ये सोचिए लुम्बिनी कि अगर हर लड़के को ऐसे अनुशासन का सामना उसकी माँ कराए तो क्या वो आवारागर्दी करेगा सड़कों पर? क्या वो गलत कार्य करेगा? शुरू से कहीं ना कहीं हमारे पालन पोषण में कुछ बीजारोपण होते हैं जो उत्प्रेरित करते हैं लड़कों को गलत कार्य के लिए या फिर खुद को श्रेष्ठ समझने के लिए। ये तो हुई घर से अत्याचार की बात। जो बात आपने दूसरी कही थी कि जो बच्चों के साथ शोषण होता है, चाहे यौन शोषण का मामला हो, छोटे बच्चों के साथ होता है, तो आपने जो कहा कि उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका मन मस्तिष्क बहुत कोमल होता है और जिस प्रकार की घटना अपने ही परिचित करते हैं घर में, वो उस घटना से भी अनजान है। उस घटना की गहराई और वो कितना सही है या कितना गलत है, वो बच्ची ये भी नहीं जानती है। और इस तरह की घटना जब हो जाती है तो उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचती है, क्योंकि उसको पता चलता है ये गलत है दूसरों के माध्यम से। उसको खुद में पता नहीं है कि ये क्या गलत है, नहीं। दूसरों के माध्यम से एक तो पता चलता है गलत है, दूसरा उसके शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। जिस लेवल का उसके साथ घटिया हरकत किया गया होगा, उस लेवल के हिसाब से उसके शरीर को नुकसान पहुंचता है। और इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो है उसका आत्मविश्वास डावाडोल होता है, क्योंकि हम छुपा छुपी में विश्वास करते हैं भारतीय समाज की, हमें छुपाना है। यहाँ पर हिंसा एक पुरुष के द्वारा की जाती है और इस बात को महिला छुपाती है या बच्ची छुपाती है। उसको माना जाता है कि उसको छुपाना है, मतलब उसके मन में ये कहीं ना कहीं बैठता है कि वही गलत है या वही दोषी है। तो यहाँ पर इसका समाधान इस तरह से है कि हमें एक बेहतर काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और पूरे समाज में इस बात पर जोर होना चाहिए कि जो गलत करता है, यानी वो दुष्कर्मी जो है, उसकी इज्जत तार तार होनी चाहिए। न कि हम जो ये लिखते हैं ना, मीडिया में भी गलत तरीके से लिखते हैं, इज्जत तार तार हो गई। छोटी बच्ची के साथ भी दुष्कर्म होता है तो इज्जत तार तार हो जाती, ऐसा लिखते हैं लोग। ये बहुत गलत तरीका है। इज्जत उसकी तार तार होनी चाहिए जो गलत करता है, न कि जो बच्ची पीड़ित है या जो महिला पीड़ित है उसकी इज्जत तार तार होनी चाहिए। ये सब जो शब्द है ना जो हम लिखते गढ़ते हैं, ये भी पुरुषत्व को बढ़ावा देते हैं, उसके अहम को तुष्टि करते हैं और ये फिर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। तो काउंसलिंग के साथ साथ बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो हम लिखते गढ़ते पढ़ते हैं। और देखिए जो बच्चे हैं
वो तो बहुत कोमल होते हैं। आज के हर बच्चे को बताया जा रहा है गुड टच बैड टच। तो गुड टच बैड टच को बहुत एक जरूरी अभियान बनाना होगा। ये नहीं कि किसी बड़े बड़े स्कूलों में इसको सिखाया जाए और कहीं नहीं सिखाया जाए। एक ऐसा अभियान बनाया जाए जो प्रत्येक सेक्टर, प्रत्येक घर, प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले तक जाए और बच्चों को इस चीज का ज्ञान दे, क्योंकि एक छोटे बच्चे को सही आप बात। कितनी गहराई तक समझा सकते हैं। दूसरी बात आपका वो था कि निर्भया, फिर हाँ, हाथरस। मैं जानना चाहती थी कि जी, निर्भया, फिर हाथरस की मनीषा और ना जाने कितने अन्य इस फहरिस्त में और नाम ना जुड़े, इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार और न्यायालय मजबूर क्यों है? क्या केवल कठोर सजा ही इसका उपाय है या फिर बौद्धिक स्तर पर नैतिक शिक्षा के माध्यम से भी हम परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल लुम्बिनी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि आखिर कब तक ये चीजें होती रहेंगी। लोग कैंडल मार्च करते हैं, निकलते हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर नतीजा वही ढाक के तीन पात। क्या सिर्फ सरकार या पुलिस इसको रोक पाएगी? ये बहुत सोचने का विषय है कि ये एक बीमारी की तरफ फैल रही है। आज देखिए, हम कोरोना काल में हम सब ऑनलाइन डिस्कशंस कर रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं। कोरोना के वैक्सीन की बात हो रही है कि कब निकलेगा। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है लुम्बिनी कि ये दुष्कर्म की जो घटनाएं हो रही हैं, और 5 साल की बच्ची, 5 महीने की बच्ची से लेके 90 वर्ष की वृद्धा तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी तो एक महामारी की तरफ फैल रही है। और इसके बीच में आप जाइए, देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हैं, पर पश्चिम के अनुशासन को नहीं अपनाते। हम उनके पहनावे अपनाते हैं, उनके अनुशासन को नहीं अपनाते। तो जब अधकचरी संस्कृति विकसित होती है ना, तो कई सारी बुराइयां आती हैं। फिर आप देखिए, बहुत इतिहास में जाएंगे पश्चिम के, तो पश्चिमी देशों में भी इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी किसी जमाने में। उन्होंने कठोर कानून के जरिए इस पर काबू पाया है, कहीं ना कहीं कानून के जरिए पाया है। तो कानून तो एक पक्ष है ही, आपको तो डराना ही पड़ता है बुरी शक्तियों को, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्यों इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं पता चल रहा है, कहीं पता नहीं चल रहा है। हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल है, वो किसी भी उम्र का है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 50 वर्ष का वृद्ध हो, वो एक मोबाइल के साथ मोबाइल की दुनिया में है। और मोबाइल की दुनिया में वो क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है, ये देखने वाला भी कोई नहीं है, नहीं इसको कोई कोऑर्डिनेट करने वाला है। नशे का पान इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लोग नशे के इतने आदी हो गए हैं, नशा इतना आसानी से उपलब्ध है कि ये दोनों चीजें मिल करके जो विकृति पैदा कर रही है, इस चीज को तो मानना ही पड़ेगा। और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम कानून की बात कर रहे हैं, पर इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि एक कंटेंट जो अन्नी, लुम्बिनी, रीमा, मालविका, अंतरा देख सकती है, वही कंटेंट एक 5 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा भी देख सकता है। आप देखिए, जितनी भी घटनाएं इस देश में हो रही है, दो तरह की दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। एक तो कुछ बदले की कार्रवाई होती है, जो पुरुष पुरुष का जो अहम है, ये जो सबक सिखाने की प्रवृत्ति है, किसी तरह की बदला, किसी तरह की कहानी से जुड़ी बात होती है, और उसमें चूंकि दुष्कर्मी की इज्जत तार तार नहीं होती है, पीड़िता की तार तार हो जाती है, तो इसलिए सबक सिखाने के लिए महिलाओं के साथ ऐसा किया जाता है। दूसरी चीज है जिसमें जो छोटे बच्चे इसके शिकार होते हैं, जो इस तरह की बीमारी होती है, इस तरह की मानसिक विकृति से जुड़े लोग होते हैं, वो करते हैं। और तीसरी, जो मैं ये जो फैक्टर बता रही हूँ कि जो आप गलत कंटेंट देख रहे हैं, लगातार गलत ही देख रहे हैं और नशा कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर मानसिक विकृति को जन्म दे रही है। और इसके निराकरण का कोई उपाय नहीं हो रहा है। इसमें भी रिसर्च की आवश्यकता है लुम्बिनी। हो सकता है इसके लिए सचमुच वैक्सीन की जरूरत पड़े। आज मुझे हंसी आ रही है या हम सब हंसते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर तो अनुसंधान करना होगा कि आखिर क्यों इतने ज्यादा दुष्कर्म की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्यों इतनी नफरत है, ये भी तो देखना होगा। आखिर एक स्त्री से एक पुरुष को इतनी नफरत क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, वो जॉब कर रही हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, और पुरुष को अपना पुरुषत्व दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है? क्योंकि आज हम मशीनीकरण के युग में हैं, तो पुरुषत्व दिखाएगा कहाँ वो? हर काम तो मशीन करती है। तो पुरुष पर जो एक निर्भरता थी, वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो ये कोई नाराजगी, ये कोई मनोवैज्ञानिक कारण तो नहीं है, ये भी देखना होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। सिनेमा, बॉलीवुड बहुत अहम फैक्टर है। आप देखिए, पुरानी मूवीज को देखिए, ठीक है उस वक्त ये नहीं था कि कोई महिला एरोप्लेन उड़ा रही है या कोई ट्रेन ड्राइवर है, या इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। बहुत हुआ तो एक फीमेल कैरेक्टर डॉक्टर या फिर टीचर दिखाई जाती थी। लेकिन एक हीरोइन की जो उपस्थिति होती थी ना, उसमें गरिमा थी, यानी उसके रोल का एक महत्व होता था। धीरे धीरे 70-80 के दशक से जब चीजें इस तरह से आई, जब हिंसा और जो प्रदर्शन, जो महिलाओं को एक वस्तु के रूप में पेश करना, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में पेश करना, सिर्फ जो उसकी सेक्सुअलिटी है उस पर ज्यादा केंद्रित करना,
और गाली गलौज और इस तरह की भाषा, छेड़खानी को बढ़ावा देने वाले गाने बने। हम और अंतरा कई बार इस विषय पर बात करते हैं, हम लोग गाने के उदाहरण के साथ बात करते हैं कि इस तरह के गाने बनना जिसमें औरतों को छीटाकसी करना या उस पर मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट समझना। राइट। इस नहीं, पर आमिर खान ने भी डिस्कशन किया था अपने कार्यक्रम सत्यम हो जाते में। सही बात, ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं नैतिक रूप से हमें पतन की ओर ले जा रही है। तो सही आपने जो बात। लिखा कि क्या नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो इसलिए है क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है, तो सही गलत अब बड़ा मुश्किल हो गया। तो ऐसे में सही की तरफ तो ले जाना होगा बच्चों को कि वो एक औरत को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ना देखा जाए। ये इसके लिए तो फिर एक शिक्षा की आवश्यकता बिल्कुल है आज के दौर में, और इन सब चीजों पे बिल्कुल बात करना होगा। हम एक तरफ कहेंगे कि गुड टच बैड टच, हम एक तरफ बच्चों को समझाएंगे कि प्राइवेट पार्ट्स कोई टच ना करे, दूसरी तरफ प्राइवेट पार्ट्स दर्शाती लड़कियां पर्दे पे दिखेंगी बच्चों को, हम और आप देखें कोई बात नहीं, बच्चे भी देखें, तो क्या भावनाएं आती हैं। तो कुछ तो एक फर्क होना चाहिए। ऐसा विदेशों में भी होता है कि भाई इतने उम्र से कम के बच्चे ये नहीं देखेंगे, ये तो होता है। जो पश्चिम इतना खुला है, वहां भी उम्र का तकाजा है कि इस उम्र के बच्चे ये नहीं देख सकते। हमारे यहाँ पूरी छूट मिली हुई है। हाँ, नहीं अन्नी जी, जी। आपने बिल्कुल सही कहा। आज जरूरत है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए, जो कि देश के विकास का आधार बनेंगी। वेल, विद दिस थॉट आई शैल मूव टू आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट, Antara Bose. Antara, we have understood from Anni's discourse that women need some special empowerment to survive in this world. Do you think compulsory martial arts training must be requisite for women? Should it be inculcated in the school curriculum? Should women be allowed to keep arms with them? I mean, will these be justifiable moves? Does the idea even sound rational to you? Your thoughts, please. Yeah, thank you, Lumbini. See, it's not only about martial arts. It's like, I think it's a part in the entire system. But as Anni said, this is about about educating our sons, educating our daughters, and the entire people about this, entire families. So this starts with psychology, I suppose. Psychology से शुरू होती है। कभी स्कूल में आप नहीं सीखते। मार्शल आर्ट्स कैन बी वन पार्ट ऑफ द सिस्टम कि चलो लाइफ स्किल आ गया, अगर कुछ हुआ तो हम लड़ लिए, ठीक है, and we can resist these things whatever is happening across the country. But it is just one part. But I think somewhere or the other psychology plays a very vital role. How we bring up our daughters, our sons, how we educate them. And you must be know you are, everybody is a mother here, I suppose. So I think बच्चे ना जो देखते हैं वो ज्यादा सीखते हैं, they observe. इससे ज्यादा कि आप उसको क्या पढ़ाते हैं वो ठीक है, वो कैच करते होंगे, बट वो मम्मी पापा टीचर भाई बहन घर में क्या कर रहे हैं उससे वो ज्यादा सीखते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपके बिहेवियर में झलकता है कि आप क्या कर रहे हैं। और आप बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे रिस्पेक्ट करें। वन थिंग आई फील वेरी बैड अबाउट इज जोक्स ऑन विमेन। इट्स लाइक लोग मजे लेते हैं बहुत, लेकिन मुझे Casual लगता and है as a passing comment, and yeah, no, you see the women. I mean, I saw I won't name the guy because he's a corporate executive. So one fine day women's day में उन्होंने मुझे क्या भेजा कि one lady वो गैस स्टेशन पे जाती है फ्यूल रिफिल करने, और वो उल्टा कार लगाती है। So instead of जहाँ से हम पेट्रोल भरते हैं दैट पाइप, उधर नहीं लगा के वो उल्टा तरफ लगाती है। तो इंस्टेड ऑफ टर्निंग द कार, वो पूरा कार को लोगों के साथ उल्टा कर देता है। लाइक it's absurd. So I said, what is this? He said, Happy Women's Day. I said, this is shit. This is not done. I mean, how do you do this? अब आप बोलेंगे हैप्पी वुमेन्स डे और पीछे से आप जोक मारेंगे कि लड़कियां ये करती है। सो व्हाट डज इट सिग्निफाई? कि आपकी बुद्धि उतनी है कि आप अपने कार को सीधा पार्क नहीं करके आप अगर उल्टा करती हो तो आप पूरा कार टर्न कर देती है। तो ये सब होता है। और छोटे छोटे जो जोक्स होते हैं, जैसे अन्नी ने कहा कि बॉलीवुड सॉन्ग्स, आई मीन कुछ सॉन्ग्स तो ऐसे हैं जिसपे हमने बचपन में हमने बहुत थिरका है, बहुत नाचा है, आइडलाइज किया है। बट देन व्हेन यू थोड़ा ध्यान दे के उनको अगर सुना जाए, so it's molestation and you enjoy that. See, Bollywood has taught us talking is good. ठीक है, स्टॉकिंग करते हैं लोग तो आप फिदा हो जाते हैं। तो लड़की कभी ना कभी शी फॉल्स फॉर इट, बट दिस इजंट ट्रू, दिस इजंट ट्रू। सो ये हमें सिखाया गया, ये हमें बड़े पर्दे पर दिखाया गया है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट नाउ कि नहीं हो ये सब इंसिडेंट? ये इंसिडेंट्स हुए हैं, ये हो रहे हैं, और आगे भी बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये कि नहीं होंगे, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है फैमिलीज की।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, मार्शल आर्ट्स, यस आई डोंट नो, समवेयर और द अदर एजुकेशन सिस्टम में हमें लगता है कि वी फोकस मोर ऑन सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज रादर देन लाइफ स्किल्स. Right. सो हम Antara, लाइफ we want to स्किल्स पे बहुत. understand, is it just because on a few accounts, women are physically vulnerable probably as compared to men, that they are on the receiving end? The patriarchal society respects physical prowess, right? It is not irrational to subvert, is it not like irrational to subvert evolutionary conditions and misuse power for self-benefit just because one can? Surprisingly, this wasn't the case in yesteryears, probably, when women in India were idealized. But the more we have modernized, the more male chauvinistic we have become. What do you think is the result? See, physical की जहाँ तक बात है ना, so I would say कि I always take my examples from animal kingdom. So animal kingdom में you see even in the big cats family, it is always the female tigers and tigresses जो जाते हैं वो शिकार करते हैं. So I don't think, if you see the nature, I don't think कि कहीं पे ना कहीं पे physically women are not weak. दिस इज हाउ वी आर कंडीशनड, इट्स इन द माइंड. सो आपको बचपन से ही बोला जाता है लड़की हो ये मत करो, लड़की हो वो मत करो. अ सिंपल केस लाइक पार्किंग, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत बात की बात है. अ सिंपल केस लाइक ड्राइविंग, ठीक है, लोग बोलते हैं कि लड़कियां नहीं चला सकती है, पार्किंग ले लीजिए, ड्राइविंग ले लीजिए. You know why? Because I have seen people telling them, अच्छा तुम लड़की हो तुम गाड़ी चलाओगी. See, these things matter. बचपन से आप क्या सुनते आ रहे हो वो आपके दिमाग में घर कर जाता है. A very common thing you must have heard is कि लड़कियां ब्रेक नहीं मारती, वो पैरों से अपने गाड़ी रोकती है टू व्हीलर्स में. इट डजंट हैपन बॉस. हम नहीं रोकते हैं पैरों से गाड़ी, हम ब्रेक मार के रोकते हैं. अ सिंपल थिंग माइट साउंड सिली, क्योंकि उसको बचपन से वही बताया गया है कि तुम लड़की हो तुम गाड़ी चलाओगी, तुम लड़की हो तुम गाड़ी चलाओगी, तुम नहीं चला सकती. सो कहीं ना हम ब्रेन से, माइंड से वो कंडीशन होते हैं कि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है लुम्बिनी व्हेन वी सी गर्ल्स कि अच्छा हाँ पैर से रोकते, बिकॉज वो कंडीशन ही नहीं है. उसको लगता है कि मेरा फोटे ही नहीं है गाड़ी चलाना, दिस इज अ मैन्स फोटे. सो ये होता है एंड एवरीथिंग इज द माइंड. सो इन एनिमल किंगडम, कमिंग बैक टू द पॉइंट, शक्ति सब में होती है एंड इट इज इक्वल, ठीक है. एंड इवन लाइक आई डोंट नो इफ यू हैव सीन कंगना रनौत's there's a video. She said women are already empowered. We talk, this is stupid, we talk about their empowerment. किसी के बच्चों को छीन के देखो, she'll rip you apart. So they are already empowered. It's just that they don't realize, and with the society like हमें इतना देवी देवी बोल दिया जाता है, तो we forget that yes we are also humans. तो यू सैक्रिफाइस, पहले होता था ना कि आप जितना सैक्रिफाइस करोगे उतने ज्यादा महान हो. सो द पॉइंट इज वी डोंट वांट टू सैक्रिफाइस, या वी वांट टू लिव आवर लाइव्स. So don't make us devi, just make us humans. That's more than enough. That's more than enough you can do. Absolutely, you see the point. If you want a Babita Fogart, a Sania Nehwal, a PV Sandhu, or say a Hima Das, or for that matter, any other sportswoman or say athletes to represent India big time at places like Olympics, we have to provide them with safe spaces for practice. They cannot constantly be bothered about footsteps following them to and fro from their coaching centers in early morning hours, because often that is the time when sports people need to technically start their practice, right? The girls can't be constantly worried about getting pulled by their dupattas on their way to schools. Otherwise, beti padhao beti bachao will be nothing but just a catchy slogan probably for It's the still country. nothing, I suppose. I mean, we haven't हमने किया नहीं है ऐसा कुछ. We don't behave, the society doesn't behave that way कि आप उस कहावत को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सच बना सके. So I think there's some time unless a generation is educated that way. Right. थैंक यू अंतरा. इसी संदर्भ में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी अपने अगले पैनलिस्ट के पास जाकर. रीमा जी, कुछ ज्यादा समझदार लोगों का ये भी कहना है कि लड़कियों के साथ गलत होने में स्वयं उनका भी हाथ होता है. वेल, ऐसे स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स को आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा सवाल तेजाब फेंकने जैसे घिनौनी हरकत और उसकी सही सजा क्या होनी चाहिए पर केंद्रित है. छेड़छाड़ भी एक मुद्दा है. लड़कियां थोड़े अंधेरे के बाद घर लौटने में डरती है या निकलने से डरती है. बदलाव कैसे लाया जाए? देखिए मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अंतरा और अन्नी जी ने जो बात कही है मैं उन पर पहले से बात कहूँगी. बहुत अच्छा उन्होंने अन्नी और अंतरा की एक व्यू थी कि देवी मत बोलो, ठीक है ना, क्योंकि इंसान पहले समझो. तो ये हो रहा है कि इंसान तो समझना ही नहीं चाहते हैं लोग. और आपको जब आप मतलब एक चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो, आप देखिएगा
शादी के पहले का एक जीवन और शादी के बाद के एक जीवन में बहुत अंतर लेडीज में नहीं आता है। मुझे जो मेरी खुद की अनुभव में होती है, क्योंकि फिर उसके वहाँ भी आपको जस्टिफाई लोग करते हैं और बाद में भी जब आते हैं तो लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि अच्छा ये जो आई है, जैसे इन्होंने कहा कि देवी, मतलब वो परफेक्ट है, उसे सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, परफेक्ट नहीं है, ऐसा है, ये इसका मतलब सही नहीं है। जस्टिफाई कौन करता है? पुरुष नहीं करते हैं, उस घर की महिलाएं करती है। उनकी एक वो बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, जैसे स्कूल में हम लोग की मेरिट लिस्ट बनती, ठीक वैसे ही वहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होती है। लेकिन उसमें पॉजिटिविटी नहीं दिखा जाता है कि हाँ ये पॉजिटिविटी। ठीक वैसे ही मैं बात करूंगी, जब बच्चे घर में परवरिश हो रही हैं तो एजुकेशन की जो बात हो रही है, आपने देखा होगा हम लोग के देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फिजिकल बीमारी दिख जाती है, अच्छा बुखार है, अच्छा खांसी है, सर्दी है, लेकिन मेंटल जो बीमारी है उस पर कोई बात ही नहीं करता है। और अगर बात करें, आप किसी भी नॉर्मल इंसान को कहे कि अच्छा मुझे लगता है कि आप डिप्रेशन में है या कुछ है, आपको एक काउंसलर के पास जाना है, तो सबसे पहले सवाल ये करेगा कि मैं पागल हूँ, पागल करार करे, राइट। पागल दिख रहा हूँ मैं। तो अगर ऐसी, हाँ, ऐसे मनोवृत्ति के लोग हैं जिन्हें प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, जो समाज में है, जिन्हें विक्षिप्त बोलते हैं, जो इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना आज के समय में बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं उनके साथ और एक चीज मैं उनसे कहूंगी कि पुरुषों के साथ एक संपर्क जो हेल्दी और सेफली भी हो सकती है, ये भी एक एजुकेशन का जरिया होना चाहिए, जो बेटियों को सिखाया जा सकता है कि कैसे सेफली ये सिर्फ बेटियों को नहीं, मेरे अनुसार बेटों और बेटों को भी दिखाया जा सकता है कि अगर आप लोग में दोस्ती होती है तो दोस्ती वहां तक ही नहीं होती है, आप लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के कई माने चीजों में आप लोग उन्हें हेल्प कर सकते हैं। और अभी थोड़ी-सी मैं विषय पर अगर बात करूँ कि लड़कियों के साथ गलत होने में स्वयं उनका भी हाथ होता है, तो हम लोग जब इतनी सारी लड़कियाँ हैं, मैं दोष नहीं देना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि समाज की परवरिश का ये एक गलत अ, होता है, जब परवरिश होती है, तो ये क्या होता है ना कि जैसे मैंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है कि बहू के ऊपर एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये गलत है, उसे सिखाएँगे, वो सीख जाएँगी तो हो जाएगा। तो ये मेरिट लिस्ट बनना जिस दिन बंद हो जाएगा, तो उस दिन फिर मुझे नहीं लगता कि कोई लेडीज़ किसी लेडीज़ के अगेंस्ट में मतलब खड़ी हो जाएँगी। कई बार हम लोग जैसे पत्रकार लोग भी जाकर कैंडल मार्च में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि हम लोगों को लगा कि अगर प्रतिवाद करना है तो हमें भी आगे आना होगा। लेकिन अगर हम बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार, नारी उत्पीड़न की बहिष्कार करें, तो हम लोग का कानून तो सही में बहुत स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे एक मर्डर कीजिएगा तो जो उसकी सज़ा जो है वो 10 मर्डर करने के बाद भी सज़ा वो है। लगता है कि सबसे पहले जो एक मतलब परिवार से एक क्या कहते हैं उसको, परवरिश, ये बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएँ हैं, वो अपनी मानसिकताएँ बदलें, कि चाहे बहुत वो ज़रूरी घरेलू है। हिंसा हो या यौन शोषण हो, सामाजिक बिल्कुल, बहिष्कार आप हो, शिक्षा का अधिकार ना देना हो, फिर आप बेटा-बेटी में भेदभाव, आप आप बताइए आप बताइए कि जितने भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, वो बताएँगी जब एक बच्चा अपने पिता के द्वारा अपनी माँ को पीटता हुआ देखता है, तो उसके अंदर वो क्या कौन-सा एजुकेशन फिर काम करेगा? वो किसी ने कहा है कि वो जो देखता है वही वो सीखता है। तो उसने देखा कि उसने अपनी माँ को पीटता है। अब नेक्स्ट टाइम वो जाएगा और अपनी पत्नी को भी पीटेगा। फिर उसके बच्चे देखेंगे। तो ये कहाँ फिर घर से ही तो शुरुआत हो रही है। तो हमें बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा। और ये जो मुझे बात होती है सशक्तिकरण, और अन्नी जी ने बहुत अच्छा किया, सशक्त है, समान है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है ना, सशक्त है और समान है ये भी समझने को तैयार नहीं है। नहीं तो वर्किंग लेडी बाहर भी जॉब करती है, बल्कि मुझे तो लगता है हाउसवाइफ उस मामले में फिर भी थोड़ी सी ठीक है, चलो घर पे है। वर्किंग लेडी तो वहाँ भी काम करती है और घर में भी आकर काम करती है, क्योंकि उसे वो माइंड सेटअप बनाया गया है कि आपको घर में भी आकर वही चीज को करना है। तो ये चीजें बदलनी चाहिए, ये चीजें समानता माँ को या घर की कोई भी लेडीज को सिखाना चाहिए कि दोनों इक्वल है। अगर एक ऑफिस चाहे वो कहीं भी हो, आप लोग काम कर रहे हैं, तो
तो आप लोग घर पे भी वही दोनों मिलकर कर सकते हैं, तो पुरुष को भी बदलना होगा, मुझे लगता है। बाकी लोगों के, और वो जो टॉपिक है कि सही में हमें देवी मत मानिए, हमें इंसान मानिए, और एक सृष्टि की जननी है वो, सही में उसमें अलग दक्षता है, वो अपने आप को सेफ कर सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब मानसिक विकृति बदलेगी। रीमा जी, आपने बेहद उम्दा तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया और साथ ही साथ समाधान भी दिया है। Well, moving on to our last but not the least panelist, Malvika Sharma. Ms. Sharma, being an advocate by the profession, you already are aware of the fact that there are many legal provisions to abate the atrocities meted out to women in today's times. For example, Dowry Prohibition Act of 1961, or say Article 14 on gender equality, CEDAW 1981. How far do you think has the judiciary been able to implement these regulations? Lumini, first, thank you. I somehow find that there is some connectivity issue. I hope you can hear me. Yes. Can you just confirm if you can hear me, then I Yes, can take the you're session audible. forward. You're audible. Can you hear? Yes. Okay. Now, I would like to start my, okay, perfect. So I'd like to start my entire minutes which you've given me with a quotation from Justice Kajju around the Hathras case. He said that sex was natural to men and went on to justify how he condemned Hathras, but he also said that it will happen and it will continue to happen because there is unemployment, there is a lot of young men doing nothing, and again he said that sex was natural. Imagine a judge who had an amazing record, whom I looked up to, said such things. You talk of law, I talk of the mansikta behind the person actually sitting as a judge and talking. So when he said sex was natural, he did not say rape was natural. Rape and sex में फर्क है. ये हमें समझना होगा जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं. Sex is always consensual. Rape is the one which is. इस चीज को इसलिए स्टार्ट करती हूँ कि हुआ मेरे साथ एक ऐसा था कि we had personal problems in the family and I didn't write about it. This is the first time I'm addressing this issue on a public platform. So I will take a minute. I do not wish to get into how wrong or how right, etc., etc., etc. I will not talk of the Hathras victim. I will not talk of the perpetrators of this crime. I will talk about what Kajju said. Then I will talk about what A.K. Singh, the lawyer in the Nirbhaya case, who had actually gone ahead and represented the rapists in that matter. And at that time, he had said that if his daughter was outside like Nirbhaya, he would have killed her. This is his language, right? And he went on to justify कि किस प्रकार जो ज्योति सिंह यानी अक्का निर्भया के साथ हुआ, वो हुआ और होना ही था. I am going to talk about the mindset of the man who feels that it is in any way justified to treat women as subhuman. यानी एक महिला एक ऑब्जेक्ट है, एक महिला एक प्लेजर का ऑब्जेक्ट है, यूजेबल ऑब्जेक्ट है, थ्रोएबल ऑब्जेक्ट है, and this starts from home. Think about it. Surely A.K. Singh, the lawyer who had represented those rapists, could have said something better rather than saying कि मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसका मर्डर कर देता. Now just think about the kind of people you are dealing with. You are not just dealing with the rapists, but you are dealing with protectors of these rapists. You are dealing with people, men and women of course, who actually stand up and say कि नहीं, हमारे पुरुष ने, हमारे मर्द ने ऐसा कुछ नहीं किया. Which is what we have been seeing for ages and ages and ages. All our panelists have spoken about how things start at home. Yes, it starts at home. Law is just a piece of paper. Remember 1947, you got your independence. I got my independence. India became independent. 1950, the constitution came. आप ये सोचिए कि उस दिन की महिला पुरुष में
की गई थी एक कागज पर, लेकिन उस आज हमने एक मजाक है, उस कागज को भूल गए हैं और we no longer talk about that. It's your fundamental right, it is my fundamental right to not be discriminated against. एक और तरफ मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करूंगी. We've had high court judges in the Madras High Court, I shall not name, but once the rapist was found guilty, he turned before sentencing to the victim and said, why don't you marry the rapist? ताकि इस जवान लड़के की जिंदगी खराब नहीं हो जाए. अब सवाल ये नहीं है कि आप क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, सवाल ये है that you are putting the entire onus of whatever happened on the victim. इस तरह के केसेस पंजाब हरियाणा में हुए. 2 मैटर्स मैं हमेशा अपने सेशंस में रेस करती हूँ. एक मैटर में जहाँ पे the rapist actually ended up marrying his own victim. He and his family burnt her alive. In another matter, the victim was already pregnant after the rape and she committed suicide. And the judges actually encouraged this. कि यानी marry the person who is your rapist. ये तो वही बात हो गई ना कि attempted murder doesn't matter, माफ कर दो. Because murder is a crime, rape is not. Murder is a crime because दिखता है, right? अगर मुझे छुरी लग जाए, अगर मैं मर जाऊं, तो फिर people will talk about it. But an act which is so disgusting, an act which is so violent is not a crime. Right. ये If you, yeah. I'm sorry to cut you short. If we see the videos that are public now of the Hathras victim, Malvika, we take a 3-day leave even for a seasonal flu. This lady with that kind of immense pain is repeatedly trying to, repeat the incident to the local camera person as well as to finally to the hospital authorities. And now that she's gone, we are even trying to run a case, trying to figure out whether it actually happened to her or not. I mean, it's really weird. See, Lumini, this is what I was saying. There is a paper, and that paper is part of Constitution of India, which says that men and women are equal. But I find men are more equal. When a woman is raped, she's actually got to prove that she's raped, right? She has to go through this entire process. I don't want to be very graphic, but would you believe, till up to a few years back, there was an actual 2-finger test which was done by doctors of the medical profession to even check if the rape was there or not. Just think about it. So you have invaded her privacy, her body again. सवाल ये नहीं है कि कानून है, सवाल ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से की जा रही है. यहाँ पे लोग इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग लीडर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं. मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ. आई एम अ वुमन एंड आई एम विलिंग टू स्टैंड अप एंड से दैट Hathras should not have happened in any manner. Are my elected representatives, be they men or women or transgender people, are they willing to stand up and say Hathras shouldn't have happened? Today, the UP government has given that entire case to the CBI. So obviously something did happen. And they decided that this was something beyond what had happened. उसका रातों रात postmortem करके burn कर देना body को, which is another challenge that we face in the Hindu rites. Once you burn the body, there's no way of exhuming the body itself. So these are challenges that we face. Now, coming to how this girl actually lived those last few days, a very simple thing. You are asked the same question over and over and over again. Thana wala asks you, the Thana wali asks you, the doctor asks, nurses, the media, absolutely everybody asks you. Now, my question is, why the hell were they not asking the rapist or the accused rapist? उनको पकड़ के पूछो ना यार. आप एक महिला को कितनी बार on camera, off camera, कितना तंग करोगे? She's already on her deathbed and she's already going to die. You know that. That is my problem. My problem is that when Nirbhaya happened and everybody had a march, a candle march all over the country, and they vowed under every light that this will never happen again, and they forgot about it. 2012 अब भी में है.
आप सोच के देखिए, हम भूल गए. It's so easy for us to forget. So, using this platform, I'd like to say that please understand this fight is not against the rapist. This fight is against the rape culture that we are perpetrating. This fight is against educated men and women who stand up and say rubbish, who don't read the law, who try and victimize the woman, who do not actually attack the rapist. In fact, आप हंसिएगा, आप अगर कभी भी केस डायरी पढ़ें तो फलां फलां के साथ एक रेप हुआ इन अ थर्ड पर्सन टर्म. व्हाट डू मीन बाय रेप हुआ? होना चाहिए कि फलां फलां के साथ इस इंसान ने रेप किया. It has to be in the first person. How the hell is it in the second, third, fourth person? How do you talk about it? That's how it is reported. Uh, the law protects the identity of the entire, the victim. I'm sure you would be aware of that the law says that you cannot reveal the victim's name. The Right. only reason we know technically Nirbhaya's name as Jyoti Singh because her father decided that yes, Right. everybody should know. But how do we know the Hathras victims? I want to question everybody here. How do you know her name? Because somebody leaked it. And it's a cognizable, punishable offense to leak names. Why the hell isn't the media running after why was the name leaked? It's a huge question. हमारी भाषा में है X was raped. No, X was not raped. Y raped X. You have to understand this is a basic problem. I'd like to take this opportunity to also talk about everyday sexism, which Antara spoke about and Aniji also spoke about, and also how things in the law aren't as great in terms of domestic violence, in terms of understanding what it is. So I'll just take a minute on that, and then Yeah. perhaps if you have We'll another just keep question. it, yes, we'll just keep it a bit brief because we have another question Yeah, to you okay. regarding So the solutions, which probably is more prominent. So once you're done, we'll go through okay, that so so that we I'll have to, yes. Yeah, okay. So one question which a lot of people ask me is the definition of domestic violence. Domestic violence has been defined very clearly in law, and yet it is very tough for any girl or any woman to go to the thana and get a case registered because even the Mahila Thana says ये तो घर की बात है. एक थप्पड़ ही तो मारा था. There was which made थप्पड़. I really appreciated how that movie went. And that's reality. The people do not take things seriously. They don't understand. Another challenge we find as a country, thappad mara to nahi. People do not consider gaslighting and emotional violence against women or economic violence against women as violence. That is not even considered in the FIR, which if it is filed. The first thing is that तुमको मारा कि नहीं मारा. अगर नहीं मारा, then it's not a crime, please go back home. So how do you expect a woman to be confident and how do you expect a woman to be protected? This is what I wanted to put forth absolutely on the table because a woman is made to prove every time. So now you can go ahead and ask the question and I'll see what I can answer. Yes, we would like to understand, apart from legal help, what else can a woman do in order to voice her pain? Can she resort to some help from local bodies like, say, NGOs or self-help groups? We have heard you have personally, you are socially active in providing justice to the subdued women. So please discuss some of your practical experiences so that we further know as to how can women in ground reality go and approach these NGOs. See, I'll give two aspects, one my own personal and one, of course, what needs to be done in Jharkhand. Okay, so essentially what happens is we encourage conversations with women and we encourage conversations through formal and informal networks. That is why I use my own social media handles very effectively and actively across. And I try to put forth ideas. I actually wrote a book which was published, and it's a series of short stories. Uh, I will be doing the Hindi Karan of the book. It is about how men and women both who faced violence and how they've recovered because these are based on true life stories which I encountered. The book is called A Normal Indian, and that is one way that I find that people are able to read what is written and they find themselves comfortable in talking because most people, like the way you said, when you talk about mental health, the moment you talk about mental health, लोग कहते पागल है क्या,
right? Same way, when an abused person comes to you, the person is extremely scared that you shall judge the way others judged. So for me, the most effective way is that I go out there and I talk about abuse, and then I find people reaching out. The next thing is that in terms of NGOs, I personally feel NGOs need to be trained. And through this medium, I am sure you're going to publish this. So I give an open offer for all NGOs. I am willing to take a session for you, free of cost, absolutely, to help you become counselors. I'm a trained counselor. I will help you become counselors so that when you see such cases, you can come forward and you can actually counsel correctly and guide the woman to the right place. Now, coming to the Jharkhand issue, as a state, I'm just talking. One of the things that we need to work on is an actual helpline which will guide the woman to a one stop solution. Work is already being done, some work has been done. We have a lot of very positive district collectors who've taken it upon themselves to be very active on social media and try to reach out to victims. However, not all women, I mean, you'll be surprised. This is something which I want you to raise, even in the written format of this thing, that barely 10 to 15% of the internet users in India are women. So you need to know that 85% of women are not on the internet. So social media is not that effective in the first place. So we need to have better connectivity with women. We need to reach out to more women. There are Anganwadi Sevikas. There are women at the ground level who can be reached out and trained. Again, this is an open offer from our end. We can actually help you train. Now, the second thing, which is another challenge, which we face, is that you don't have a centralized list of NGOs or activists with phone numbers and email IDs, which anybody can access at a snap of a finger. The lady has to make an effort to look for the place. The same goes with thanas. You don't have these mobile, effective thanas wherein, absolutely all information is there. So this is something which we need to work on. The third thing, I feel that Jharkhand as a state, we are a woman positive state, and there is a very long way to go, yes, no doubt about that. But we should use our own culture to actually come up with solutions which are society centric and society oriented. So the government needs to reach out with awareness of law, awareness of whom to go to, what to say, what not to say, and in train the cops to actually take the case. And this is for India as a whole. Police people need to be trained. One of the tragic things is that the thana person, maybe 8th pass or 10th pass, may not realize. And remember, these cops also come from the same society that Justice Gadju also comes from. Remember the guy who just said that it was very natural for sex to happen, and all the while saying that no, I condemn the rape at Hathras. So from the very same society, we have young boys and girls. Even the women Thanawala walis are not very aware of the law or sensitized about women's issues. So that needs to be done, in my very humble opinion, and it's high time we do it. It was truly enriching to know about the multifaceted solutions that women should actually be aware of, but most of them are denied access to because they have been discriminated against. Well, with this, we have come to the end of the discussion. Would any one of you like to sum up or add anything briefly? किसी को अगर कुछ extra एक आध point बहुत मैं कहूंगी कुछ जो बहुत अच्छी अच्छी बातें मालविका जी ने बताई, क्योंकि एज ए रिपोर्टर मैंने बहुत सारी कवरेजेस की है। कई लोगों के लिए मैं अभी सभी जानते हैं कि किन किन मामलों को लेकर मैं अभी तक लड़ रही हूँ, उन पीड़ित परिवारों के साथ जिनकी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। कंसेंट एक वर्ड होता है जिसके बारे में कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में। जो बहुत अच्छी बात कही मालविका ने कि जो काजू की सोच है वही एक थाना के उस व्यक्ति की सोच है जो 8वीं पास है। हम उसको क्या दोष दे, जब इतने पढ़े लिखे जज होकर इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब माइंडसेट एक प्रॉब्लम है, बात सिर्फ डिग्री की नहीं है। माइंडसेट की रेप कुछ तो है ही नहीं, वो तो हो गया। मतलब कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई किसी के साथ इन्वॉल्व है तो यहाँ पे ये मेंटालिटी है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ जा रही है तो इसलिए भी उसका रेप करता है, उसके प्रेमी को बंधक बनाकर कि वो उसके साथ जा रही है। मतलब कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है।
और इस मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचा नहीं समाज, तो कंसेंट नहीं है, रेप तो कुछ है ही नहीं, और रेप एक हिंसा है, इट्स जस्ट अ वायलेंस, ये बताना होगा समाज में लोगों को कि वो सेक्स जो बता रही थी ना मालविका की, सेक्स और रेप में डिफरेंस है जी तो पुलिस थाना में जहाँ जाती है पीड़िता, वो तो उसको डिफरेंस के रूप में लेता ही नहीं है ना, उसके जी लिए तो ये कैजुअल एक चीज है, जी और वो हिंसा के रूप में जब तक नहीं देखा जाएगा, रेप को, दुष्कर्म को एक हिंसा के रूप में जब तक नहीं देखा जाएगा, ये समाधान नहीं निकलेगा। जी दूसरी बात, जो हाथरस वाली घटना थी, कानून कठोर बना देने से ही अगर सॉल्यूशन होता तो हाथरस में ये सवाल ही नहीं उठता कि रेप हुआ कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दे रखी है पहले से कि पीड़िता का बयान ही काफी होता है, पीड़िता का बयान काफी होता है, उसके बाद भी बार बार उससे पूछा जाना, जी और ये सवाल जो जी उठा हाथरस में, वो इस बात का परिचायक है कि हमारे देश में कानून बन भी गया तो देख लीजिए धरातल पर उसका क्या उपाय हो रहा है। सही और बात यहाँ तो डाइन डिक्लेरेशन, मौत के पहले का बयान है सही और बात है लड़की का बयान है, उसके बाद इस तरह के सवाल उठने, और उन सब सेक्टरों से उठ रहे हैं जो बहुत पढ़े लिखे और काफी हाई लेवल के माने जाते हैं। तो ऐसे में वो काटजू और वो थाना वाली जो बात कही है मालविका ने, बस इस माइंडसेट को बदलने की बहुत जरूरत है। रीमा दी, आपसे कोई क्लोजिंग कमेंट मिलने वाली है, आप कुछ बोलना चाहती हैं? ये घटनाएं तो हाथरस वाली हो या निर्भया वाली, आप देख लीजिए वही स्थिति है, और आज भी हम लोग वही खड़े हैं, और इसमें कोई मतलब सुधार नहीं हुआ है। तो जैसा मालविका जी ने कहा है कि मतलब कानून अपनी जगह था, कानून बन गया, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, सही बात इसकी कोई। दूसरी चीज, एक हमारी भी जिम्मेदारी है, बहुत अच्छी वो था कि हेडलाइन जो होती है उसको अगर चेंज कराने की पहल, एक रिक्वेस्ट भले ही किया जा सकता है कि फलाने आदमी ने किया है दुष्कर्म, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट मुझे मिली है, शायद मैं अपने स्तर पर कुछ पहल कर सही पाऊँ। बात है, आप सब महिला तो पत्रकार है तो आप सब पहल करें इसमें, ताकि जल्दी बदलाव आए जिस तरह से हम रिपोर्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अंतरा, आप कुछ क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहेंगी जल्दी से 1 मिनट में? हाथरस वाले इंसिडेंट में देयर आर टू थियरीज कि एक तो रेप नहीं हुआ है, उसकी ऑनर किलिंग हुई है, और एक है कि रेप हुआ है। नाउ अब जो लोग जो बिलीव करते हैं, बट द आयरनी इज कि जान तो उसी की गई ना, उस लड़की की गई है, और कोई तो इसका बलि का बकरा नहीं बना, चाहे वो रेप हुआ हो, नहीं चाहे ऑनर किलिंग हुई हो, जान उसी की गई। सो वी नीड टू चेंज ऑन मेनी लेवल्स। आई थिंक इट्स पुलिस, जैसे अनी ने कहा कि पुलिस के लेवल पे वो मानते ही नहीं है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में घुसिए, नहीं, आप सिंपल सी इतने चीज है। बड़े सेक्सुअल हैरेसमेंट तो छोड़ दीजिए, आप एक चलिए, आप एक पासपोर्ट घूम गया है, इसका रिपोर्ट लिखवा के दिखा दीजिए मुझे रिपोर्ट लिखवा के नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि हम उतना फेस नहीं FIR करते, क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने हम जाके बोल देते कि फलाने पेपर से है। बट यू आस्क एनी वुमन एंटरिंग अ पुलिस स्टेशन कुछ जनरल भी लेडीज कराने के लिए, यू जनरल नो लेडीज व्हाट, पुलिस नहीं कुछ जाती साल नहीं है। पहले की बात है, शायद 7-8 साल पहले की बात है। मेरे एक फ्रेंड के पापा के साथ कुछ केस हुआ था, साक्षी थाने की बात है। सो वी वेंट, वहां पे उनके पापा थे, सो मी एंड माय फ्रेंड वेंट। You know what the first question the police asked? The first question he asked is, आप दोनों के एक दूसरे से आपका क्या रिश्ता है? So I said, उससे आपको केस में क्या फर्क पड़ता है? So this is how they see women. सही बात है। So the moment you enter, उससे कुछ लेना देना नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने husband के साथ जाऊं, भाई के साथ जाऊं, किसके साथ, दिस इज वेरी, पूरा टोन चेंज हो जाता है। बट वाई अगर किसी भी आम व्यक्ति को, एक महिला को ये क्यों फेस करना पड़ेगा? सो बहुत हमने बोला है, वी टॉक अ लॉट, बट वी हैव टू चेंज ऑन मेनी लेवल्स, मेनी एडमिन लेवल, ब्यूरोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, हर लेवल पे हमें चेंज होना होगा। दैट्स इट। Right. Okay, we will not be taking this discussion any further because of technical obligations. I thank all the esteemed panelists for taking out some time from their super busy, hectic schedules and contribute to this needful conversation. जिस तरह भारत सबसे तेजी से आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वालों देशों में शुमार हो रहा है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने का भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। Better and regular representation of women's issues will ensure that their voices are heard and that their issues are fairly recognized. We, through our voices today, try to stand in support for those sisters of ours
who rarely get represented but have every right to a fair share of support. With this thought, we'll close off this discussion now. Thank you for staying with us. Thank you, Lumbini. Thank you. you. Thank you, Lumbini.